ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ برزلہ سری نگر میں فورسز کے ساتھ جھڑپ میں لشکر کے ٹاپ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک۔ وزیر دفاع نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جموں کشمیر اور لداخ میں BRO کے 18 پلوں کا کیا افتتاح۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں عوامی سہولیات میں بہتری لانے کی خد و خال کا اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں لیا جائزہ۔ اور وادی میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا عرس مخدوم، عرس علمدار کے سلسلے میں ایام کا آغاز۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سری نگر کے برزلہ علاقے میں آج فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر کے ایک ٹاپ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ جھڑپ آج صبح 7:45 بجے کے قریب اولڈ برزلہ میں اس وقت شروع ہوئی جب فورسز علاقے کی تلاشی لے رہے تھے اور وہاں موجود ملیٹنٹوں نے اہلکاروں پر فائر کھولا۔ جوابی کارروائی کے ساتھ ہی طرفین کے مابین کئی گھنٹوں تک جھڑپ جاری رہی، جس کے نتیجے میں پاکستان کے رہنے والے سیف اللہ نامی لشکر کے ایک ٹاپ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ دوسرے ملیٹنٹ کی پہچان پلوامہ کے ارشاد احمد ڈار کے طور ہوئی ہے۔ پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ سیف اللہ حال ہی میں نوگام، چاڈورہ اور کنڈیزال علاقوں میں ہوئے یکے بعد دیگرے حملوں میں ملوث تھا۔ اس میں لشکر کا ٹاپ کمانڈر سیف اللہ جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ مارا گیا ہے، اور سیف اللہ جو یہ پچھلے ایک کے بعد ایک 3 میجر اٹیکس میں شامل تھا۔ قیصر اللہ بڈگام میں کچھ ہی دن پہلے CRP کی پارٹی پر اٹیک ہوا تھا جس میں ایک ASI ہمارے شہید ہوئے تھے۔ کچھ ہی روز پہلے 7 تاریخ کو کنڈیجال میں CRP کی دوسری پارٹی کے اوپر اٹیک کیا تھا جس میں 2 CRP کے جوان شہید ہوئے اور 3 اور زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور اٹیک کنڈیجال کے ایریا میں کانوائی کے اوپر کیا تھا۔ اس کانوائی میں جو اٹیک تھا اس کو ریپلس کر دیا گیا تھا، اور نوگام کے بغل میں جو پولیس کے 2 جوان، آرمڈ پولیس کے جو 2 مارے گئے تھے، اس میں بھی سیف اللہ اور عادل الیاس ٹپو سلطان شامل تھے۔ ادھر لداخ کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کا ماحول پیدا کرنے کی غرض سے آج بھارت اور چین کے درمیان چشول کے مقام پر ایک اور بات چیت ہوئی۔ 7ویں دور کی اس بات چیت میں بھارتی وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ اور ان کے جانشین لیفٹیننٹ جنرل PGK مینن نے کی، جبکہ چینی وفد میں وہاں کی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ اہلکار بھی شامل رہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ کی 21 تاریخ کو چھٹے دور کی بات چیت میں ہندوستانی وفد میں ایک اعلیٰ سفارتکار مشرقی ایشیا امور کے جوائنٹ سیکرٹری نوین سریواستو کو شامل کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ورچوئل طریقے پر جموں کشمیر اور لداخ سمیت ملک کی کئی دیگر ریاستوں میں سرحدی سڑک تنظیم BRO کی طرف سے تعمیر 44 پلوں کا افتتاح کیا۔ ان میں سے 8 پل لداخ UT میں 45 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے ہیں، جو کہ مغربی حصے میں LOC اور مشرقی خطے میں LAC کے نزدیک اسٹریٹجک اہمیت کی 4 سڑکوں پر ہیں۔ 44 میں سے 10 پلوں کا افتتاح جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی موجودگی میں کیا گیا۔ ان 10 پلوں میں اشم برج، داہی برج، ڈانڈی برج، سانیال برج، بنیاری برج، AIK برج، کالا برج، مدن برج، بابن برج اور بٹھا برج شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان سبھی پلوں کو عوام کے نام وقف کرنے کے لیے وزیر اعظم، وزیر دفاع اور BRO کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید جتائی کہ ان پلوں کی بدولت دور دراز دیہات کی آبادی کو فائدہ پہنچنے کے ساتھ ساتھ فورسز کی موومنٹ آسان ہو جائے گی۔ دریں اثنا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سول سیکریٹریٹ سری نگر میں جموں کشمیر بھر میں عوامی سہولیات میں بہتری لانے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ بڑی سڑکوں کے نزدیک جگہوں کا انتخاب کر کے پبلک کنوینس تعمیر کرنے سے متعلق منصوبہ بنائیں۔ انہوں نے 3 مہینوں کے اندر 700 سے 800 پبلک ٹوائلٹس تعمیر کرنے کا ہدف رکھا۔ LG نے اس طرح کی سہولیات کے بہتر رکھ رکھاؤ پر بھی زور دیا۔ LG نے پبلک کنوینسز کے نزدیک واٹر ATMs اور ضروری چیزوں کے اسٹال لگانے کے امکانات تلاش کرنے کے لیے بھی کہا تاکہ اس کی آمدنی سے کنوینسز کا رکھ رکھاؤ یقینی بنایا جا سکے۔
नई दिल्ली में आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की सदारत में GST काउंसिल की 43वीं मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें रियासतों के लिए GST मुआवजे के हिस्से की अदायगी के तरीके पर तबादले ख्याल किया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी LG के मुशीर KK शर्मा ने की, जिन्होंने मुख्तलिफ एजेंडा और निकात पर काउंसिल के सामने अपनी तजावीज़ रखें। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के सामने आ रहे नए मामलात में कमी आने का रुझान आज भी जारी रहा, जबकि नए तस्दीक शुदा मामलात के मुकाबले में सेहतियाब होने वालों की तादाद आज भी ज्यादा रही। सरकारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक यूटी में कुल 398 मामलात की निशानदेही हुई, जबकि 861 सेहतियाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ताहम कोविड मुतासरीन में से 11 मरीजों की मौत भी वाक़ हो गई। मुल्क में कोविड-19 से सेहतियाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 61,49,000 से ज्यादा हो गई है। सेहतियाबी की शरह बढ़कर 86.36% हो गई है। भारत में इस वायरस से होने वाली अमवात की शरह 1.53% रह गई है। मुतासरीन की कुल तादाद 71 लाख से जायद हो गई है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। पहले पेश है कोरोना से एहतियात के बारे में ये मुख्तसर पैगाम। कोरोना पैंडेमिक का कहर पूरी दुनिया पर फैला हुआ है और ये एक ऐसी मुहलिक वबा है जिसका बज़ात खुद डायरेक्ट इलाज तो नहीं है, लेकिन कई तदाबीर ऐसे हैं जिससे इस मुहलिक वबा को रोका जा सके। सबसे अहम ये है कि हम लोग मास्क का इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल में रखें हर जगह पर। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फंक्शन हो कोई, चाहे वो पार्क हो, तो 1-2 गज़ की दूरी मेंटेन रखें। तीसरा, हैंड सैनिटाइजेशन को जहन में रखें और हर वक्त सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें जब भी ज़रूरी हो, और साथ साथ आप दिन में कई बार साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। जम्मू व कश्मीर के एक साबिक वजीर और मारूफ सियासी लीडर मोहम्मद शरीफ नियाज आज जम्मू में इस दुनियाई फ़ानी से रहलत कर गए। मरहूम की उम्र 75 बरस थी और उनका ताल्लुक बदरवा से था। उनके इंतकाल पर कई सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने गहरे सदमे का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए मरहूम के हक में दुआई मगफिरत की। उन्होंने सोगवार कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए गमज़दा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। अपने पैगाम में उन्होंने मरहूम को एक दूर अंदेश सियासतदान करार दिया। उन्होंने हमेशा समाज के कमज़ोर तबकों की फलाह व बका के लिए काम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर कई सियासी शख्सियात ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। दरी असना PDP की तरफ से आज राजौरी में एक ताज़ियती इजलास के दौरान मरहूम को खराज अकीदत अदा किया गया। इजलास के दौरान मरहूम की खिदमात को याद किया गया और उनके लिए इसाले सवाब के लिए दुआ की गई। बाद में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मरहूम के घर जाकर सोगवार खानदान की ढारस बंधाई। वादी में आज बुलंद पाए वली कामिल हज़रत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स नहायती अकीदत एहतराम ताहम सादगी साथ मनाया गया। इस सिलसिले में असल तकरीब उनके आस्तानी आलिया वाक़ कोही मारा श्रीनगर में मुनाकिद हुई। हालांकि कोविड-19 आलमी वबा के चलते इस साल उर्स के मौके पर शबखानी की कोई तकरीब मुनाकिद नहीं हो सकी। अलबत्ता आज दिन में खदमातुल मुअज़्ज़मात की कुछ मजालिस आरास्ता हुई, जिनमें शामिल अकीदतमंदों ने कोविड से बचने के लिए एहतियात के तौर सभी SOPs पर अमल दरामद किया था। इस मौके पर कई उलमाए किराम ने हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की इल्मी और रूहानी कमालात के अलावा उनकी रियाज़त इलाही से मुतल्लिक वाज फरमाया। बाद में इस्लाम की सरबुलंदी, आलमी इंसानियत की बका और मौजूदा वबाई सूरत हाल से निजात के लिए दुआएं मांगी गईं। वादी के दीगर इलाकों में भी ऐसी तकारीब का इनेकाद हुआ। दरी असना जिला तरक्याती कमीशन बारामूला डॉक्टर GN एतू ने आज उर्स के सिलसिले में तुजर शरीफ सोपोर में वाक़ हज़रत महबूबुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह के आस्तानी आलिया पर हाज़िरी दी और जम्मू कश्मीर की आवाम की खुशहाली, अमन अमान और तरक्की के लिए दुआ की।
उर्स अलमदार कश्मीर हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में आज से उनके आस्तान आलिया वाक़े चरार शरीफ में मुतबरक अयाम शुरू हुए। आज दिन भर आस्तान आलिया पर दरूद अज़कार और ख़त्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता हुई, जिस दौरान कोविड-19 से मुतल्लिक़ जारी रहनुमा हिदायत पर अमल किया गया। आज ही उनके रोज़े मुबारक की गिलाफबंदी भी की गई। उर्स मुबारक 26 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी बुधवार 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज जिला अनंतनाग से वाबस्ता पार्टी अहदेदारों का एक इजलास सूबाई सदर नासिर असलम वानी की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए पार्टी अहदेदारों ने कहा कि नई दिल्ली के गलत फैसलों ने जम्मू कश्मीर को दहाइयों पीछे धकेलने के साथ साथ यहाँ की सूरत हाल को भी दिगरगों कर डाला। इधर पार्टी की खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर यौम बच्चियां की मुनासिबत से एक तकरीब की सदारत की। श्रीनगर में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर अहदेदारों की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर मामलों की नई पार्टी इंचार्ज रजनी पाटिल और JKPCC के सदर गुलाम अहमद बीड ने की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत सरकार पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि सरकारी पॉलिसी की वजह से ही मुल्क और जम्मू कश्मीर इक़्तिसादी बहरान, बढ़ती हुई बेरोज़गारी और दीगर कई मामलात से दोचार हुई है। पार्टी ने आम लोगों की मुश्किलात में इजाफे के लिए भी सरकार को आड़े हाथों लिया। साबिक मरकज़ी वज़ीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज़ ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें रोशनी एक्ट को गैर आईनी करार दिया गया है और मामले की तहकीकात CBI को सौंपी गई है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज जिस्मानी तौर नाखिज़ अफराद की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जो डिसएबिलिटीज़ एक्ट 2016 को फौरी तौर पर अमलानी की मांग कर रहे थे। दरी अस्ता महकमे दी तरक्की में कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियाद पर काम करने वाले CIC ऑपरेटरों ने उन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल करने के हवाले से हिदायत जारी करने की सरकार से अपील की है। नेशनल बांड थिएटर वाथुरा की तरफ से चाडोरा में आज से 5 रोज़ा फोक थिएटर का आगाज हुआ। आज वादी के मुतादिद फनकारों, अदाकारों और थिएटर से वाबस्ते अहम शख्सियात ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर और इसके मज़ाफ़ात में गैर कानूनी तौर पर खड़ा की गई इमारतों को मुनहदम करने की गर्ज से शालीमार कॉलोनी, खुशहाल सर, बागीनंद सिंह, रठपुरा, पालपुरा, नूर शाह कॉलोनी और दीगर कई मकामात पर कार्रवाई अमल में लाई। इसी दौरान तमाम वार्ड ऑफिसरों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने इलाकों में तामीराती कामों पर कड़ी निगाह रखें ताकि गैर कानूनी तौर पर किसी तरह की तामीरात पर रोक लगाई जा सके। इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स श्रीनगर की इत्तला के मुताबिक इदारे में मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए रवां तालीमी सेशन का दाखिला अमल शुरू हो गया है। दाखिले का ऑनलाइन अमल 12 अक्टूबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विजय राजे सिंधिया के एजाज़ में 100 रुपये का यादगारी सिक्का जारी किया है। उनका शुमार BJP के बानी मेंबरों में होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया की ज़िंदगी हमेशा गरीबों की उमंगों से वाबस्ता रही और उन्होंने पूरी ज़िंदगी गरीबों की मदद की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस शहीदी यादगारी टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह DGP दिलबाग सिंह ने किया। इफ्तिताई मैच मागाम 11 और बडगाम 11 के माबेन खेला गया। इस मौके पर IGP कश्मीर भी मौजूद थे। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।